welcome to my channel. Myself Sonali Gupta and this video is about the rectifier. लास्ट वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया है एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक. हमने देखा पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेट ओनली इन फॉरवर्ड बायस. इन रिवर्स बायस it does not conduct any current. This phenomena we are using in this rectifier circuit. What is this rectifier? Rectifiers are the circuits which convert AC into DC. What is this AC-DC? See, AC means alternating current. We are giving this type of signal which changes its polarity, positive, negative, positive, negative. This is the alternating voltage we are giving as a input. And in rectifier circuit, this converted into DC form, constant voltage. How it operates? See, here we are using one diode, PN junction diode. This is the symbol of PN junction diode. It has two terminal, anode and cathode. And this one is the transformer. This transformer, it has, this is one is primary winding. This is primary winding and this is secondary winding. This is the symbol of transformer. It has two windings, primary and secondary. Through primary we are giving AC input voltage and through secondary winding we are connecting this circuit. One diode and this is the resistance through which we get output voltage. See, this is the circuit diagram of half wave rectifier. Why it is called half wave rectifier? Because it rectifies only half cycle of input signal. See how it works. When we are giving input voltage, sinusoidal voltage means alternating voltage to this circuit through primary winding of transformer. During positive half cycle, what happened here? This one become positive and this one become negative. So A terminal at point A, it also become positive and B it become negative. So this diode, this anode has get positive potential. So it is in forward bias because we know that PN junction diode operate in forward bias. What is mean by forward bias? When anode is connected to the positive terminal and cathode is connected to negative terminal. This is forward bias condition. And what is reverse bias? When anode is connected to negative potential and cathode is connected to positive current, that is reverse bias condition. This is forward bias. So during positive half cycle, what happen? We get this input polarity at E point, it get positive potential. So this diode D1 become forward bias because at anode terminal it get positive potential. It D1 become forward bias, so it conduct and current flows through this circuit through this resistor and we get output voltage. Through resistance R. We get output current flow through this circuit because diode conduct and diode conducts, so current flows. This is happening during positive half cycle of input voltage. When we are giving during this negative half cycle, during negative half cycle this polarity become reverse. Here get negative and this terminal become positive. So at point A we get negative and at point B we get positive. So the diode get negative potential to anode terminal. When anode is connected to negative polarity, then this diode become reverse bias. And when diode become reverse bias, then it does not conduct. डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमको आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा. So during negative half cycle we get zero voltage. Because diode does not conduct because it operates in reverse bias, and in reverse bias very less saturation current flow, reverse saturation current due to minority carriers, and this current as a practically we take it as a zero. प्रैक्टिकली इस रिवर्स करंट की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम उसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं. कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हमको आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा.
So during negative half cycle we get 0 voltage. Again what happened? Again when during positive half cycle, during again polarity change, it get negate positive, this terminal become negative, A become positive, B become negative, then this process repeated. D1 again anode get positive potential, so D1 conduct, current flows and we get output voltage during positive half cycle. Here in this rectifier we are rectified only half cycle of input voltage. We get output voltage only half wave, for half wave. For negative half cycle we get 0 voltage, so it is called as half wave rectifier. इसीलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनपुट वोल्टेज के सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है. हाफ वेव जो निगेटिव हाफ साइकिल है उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, उसको सीधे वो 0 वोल्टेज दे रहा है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं. एंड ड्यू टू दिस efficiency of this rectifier is very less because it rectified only half cycle of input voltage. This is the half wave rectifier. क्या होता है half wave rectifier? First you define rectifier. Rectifier is the circuits which convert AC input into alternating input into DC voltage. We get constant voltage with the help of rectifier circuit. This is the circuit diagram of rectifier. Half wave rectifier. Here we are using input voltage giving. This is the transformer, primary winding, secondary winding. Through secondary winding we are connected diode and resistor through which we get output voltage. क्या होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे पोलैरिटी ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगी. सो डायोड हियर गेट पॉजिटिव एंड बी टर्मिनल बिकम नेगेटिव. तो डायोड का जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, एनोड को पॉजिटिव मिलेगा तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा, करंट फ्लो होगा, हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. दिस इज हैपन ऑन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. बट व्हेन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपन? पोलैरिटी रिवर्स. This terminal, A terminal get negative, B terminal positive. So diode anode get negative potential. If anode is connected to negative terminal, then that diode become in reverse bias. So there is no current flows. करंट फ्लो नहीं होगा, हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा. सो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा. अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज रिपीटेड. We get output voltage. Again during negative half cycle we get 0 voltage. So this circuit rectified only half cycle of input signal, so it is called as half wave rectifier. And efficiency of this circuit is very less because it rectified only half cycle. We get voltage, output voltage at during only positive cycle of the इनपुट सिग्नल. हमको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत लेस होती है. देन वी आर डिजाइनिंग अनदर सेकेंड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज फुल वेव रेक्टिफायर. दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर only rectify half inputs AC signal. This one is the full wave rectifier. Why it is called full wave rectifier? Because see here in this circuit we are using two diodes, D1 and D2. This is the transformer. This transformer is known as center tap transformer. Center tap transformer. This one is the center tap transformer. This is the center tap transformer. Here are two winding, primary and secondary, and in secondary winding this is one is the center tap, so it is called as center tap transformer. And these are two diodes, D1, D2, and these two terminals, and then this is the resistance through which we get output.
सी व्हाट हैपेंड, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आपको ये याद करनी होगी फुल वेव रेक्टिफायर की ये सर्किट डायग्राम। इन दिस वी आर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, and in secondary winding this is the center tap which is given to ground, and then these are two diodes. In half wave we are using only one diode, but here we are using two diodes, and this is the when these two diodes are connected, and then this is the output resistance through which we get output voltage. This is the full wave rectifier. Full wave rectifier again one type, bridge rectifier. In that we are not using center tap, हम उसमें सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज़ नहीं करते हैं, उसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं। एक वो भी टाइप होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, बट आपके सिलेबस में सिर्फ यही है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सी हाउ इट इज़ वर्क। एंड थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग वी आर गिविंग इनपुट सिग्नल, input is alternating signals. When we are giving input signal during positive half cycle, what happened when we are giving input signal positive, during positive, and this terminal become positive and this become negative during positive half cycle. This is positive, so secondary winding, this A terminal become positive and this B terminal become negative. So what happened, which diode conduct, D1 or D2? The diode which the anode which is connected to positive terminal, that one diode conduct and another diode not conduct. See here D1, this is the anode, and this anode is connected to positive terminal, so it is in forward bias. But here D2 anode terminal is connected to negative, so this D2 become reverse bias. So क्या होगा इस सर्किट में, D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि D1 के एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है इसलिए वो फॉरवर्ड बायस में जाएगा, बट एट द सेम टाइम D2 के एनोड को निगेटिव मिल रहा है तो वो रिवर्स में आएगा। तो ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, बट D1 कंडक्ट करेगा। D1 कंडक्ट करेगा यानी इसमें से करंट फ्लो होगा और वो हमको आउट थ्रू यहाँ से करंट जाएगा और हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, because D1 conduct, so current flows through this circuit through resistance and we get output voltage. Again during negative half cycle what happened, polarity reverse, this one become negative, this one become positive. So at point A we get negative potential and at point B we get positive potential. What happened, anode of D1 get negative, so it become reverse bias, ये रिवर्स बायस में जाएगा और D2 जाएगा फॉरवर्ड में। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। इस टाइम D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस में है तो हमको क्या होगा, यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा और हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वी गेट आउटपुट वोल्टेज। बिकॉज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, एक डायोड कंडक्ट कर रहा है, एक डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक फॉरवर्ड में जाएगा, एक रिवर्स में जाएगा, कंडक्ट करेगा एक डायोड एट ए टाइम, और हमको यहाँ पर आपका D1 कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे आपका D2 कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से D1 फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट इसमें D2 फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट है, पोलैरिटी चेंज कर रहा है आपका इनपुट सिग्नल, उसी तरीके से इन पॉइंट्स की पोलैरिटी चेंज हो रही है, D1 का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस चेंज हो रहा है, और जो फॉरवर्ड बायस में वो डायोड कंडक्ट करके आपको आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज इट रेक्टिफाइड फुल वेव, फुल इनपुट वेव। अब पॉजिटिव में भी रेक्टिफाई करके आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, नेगेटिव वेव को भी आउटपुट रेक्टिफाई करके आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और इफिशियंसी इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल है, क्योंकि क्या हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको सिर्फ इन हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई हो रही थी, इसलिए उसकी इफिशियंसी बहुत कम थी। बट
हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर हैज़ डबल इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपको फुल वेव रेक्टिफाई करके दे रहा है। So this is the full wave rectifier. It is called full wave rectifier because it rectified full wave of input signal into आउटपुट डीसी वोल्टेज। रेक्टिफायर है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और ये फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। आपकी फुल इनपुट होल सिग्नल जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल में आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है इसकी ये सर्किट डायग्राम है। आपको सर्किट डायग्राम लर्न करनी है। सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करना तो बहुत इजी है। इसमें आप इसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो और ये आपके वेव फॉर्म्स ये भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। आप इससे ही क्या करोगे, उसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज शो करोगे और वो आप देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। बट आपको डायग्राम्स याद रखनी पड़ेगी। सर्किट डायग्राम्स प्रॉपरली ड्रॉ करिए, वेव फॉर्म्स प्रॉपरली ड्रॉ करिए। एग्जामिनर चेक करता है तो वो आपके एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ेगा, बट आपका ये सब देखेगा तो वो कि ये और ये एक्सप्लेनेशन तो वो आप अपनी लैंग्वेज में कर ही सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है। क्या हो रहा है इसमें एक बार और देख लेते हैं। ये है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या डिफरेंस है हाफ में और फुल वेव में? हाफ वेव में हम क्या करते थे, सिंपल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, सेंटर टैप से हम 2 डायोड कनेक्ट कर रहे हैं इसमें D1 D2 और इनपुट सिग्नल देंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। दिस पोलैरिटी, दिस पॉइंट A terminal has positive, B terminal has negative. So diode D1, anode of diode D1 get positive potential, so it become forward bias, and anode of D2 diode gets negative potential, so it become reverse bias. ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। D1 फॉरवर्ड बायस से कंडक्ट करेगा, हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, करंट फ्लो होगा सर्किट में और आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। D2 रिवर्स बायस, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ए टर्मिनल पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, बी पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस एनोड गेट पॉजिटिव, सो D1 कंडक्ट, D1 डज नॉट कंडक्ट, सो वी गेट आउटपुट वोल्टेज। दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, इनकी सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म्स, इनपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म, इनको प्रॉपरली ड्रॉ करिए, सर्किट डायग्राम ये लर्न करिए। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप समझ जाओगे तो आप खुद ही इसको लिख सकते हो। इफ़िशियंसी, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इसकी इफ़िशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर हैज़ गुड इफ़िशियंसी बिकॉज इट रेक्टिफाइड फुल वेव। We see that rectifier is a circuit which convert AC to DC। अब ये AC से DC कन्वर्ट कर रहा है, हमको AC हम जो दे रहे हैं उससे हमको DC मिल रहा है, बट DC आप देखो यहाँ आउटपुट वोल्टेज में हमको कांस्टेंट DC नहीं मिल रहा है। ये जो DC हमको मिल रहा है ये यूनिडायरेक्शनल है। सिर्फ क्या हो रहा है, हमको आउटपुट वोल्टेज में जो निगेटिव में हमारा पोर्शन वेवफॉर्म का था वो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो ये क्या हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। ये जो वेवफॉर्म मिल रही है हमको ये यूनिडायरेक्शनल है, बट इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट डीसी। हमको एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, ये हमको साइनोसाइडल ही मिल रही है, बट यूनिडायरेक्शनल। सो क्या किया जाता है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, दिस सर्किट कनेक्टेड विथ फिल्टर सर्किट, फिर इसके साथ एक फिल्टर सर्किट कनेक्ट करते हैं। उस फिल्टर से क्या होता है, इसमें जो भी एसी पोर्शन है, अब इसमें आपका अभी भी थोड़ा बहुत एसी है, वो एसी होता है रिपल। दैट फैक्टर इज रिपल फैक्टर, मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो हमको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिला है, दिस इट कंटेन्स सम एसी पार्ट, दैट रिपल फैक्टर, एंड इट रिमूव विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। हम इसके बाद एक फिल्टर सर्किट लगाएंगे, उस फिल्टर से जितना भी उसमें रिपल होगा, एसी फैक्टर होगा, उसको हम रिमूव करेंगे तो हमको मिलेगा कांस्टेंट डीसी। अब ये फिल्टर क्या होता है, फिल्टर में सिंपल है। अगर आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इसमें क्या होता है, ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, एक तो आप सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है, फिल्टर सर्किट में सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट करिए, या पैरेलल में
सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट होता है या फिर पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट होता है। फिल्टर सर्किट बहुत सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है, हमारा जो आउटपुट है रेक्टिफायर का, उसको साथ हम क्या करते हैं, एक या तो आप सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट करिए, ये भी एक एज ए फिल्टर वर्क करता है, और या पैरेलल कैपेसिटर को पैरेलल, यहाँ पे जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। विद फिल्टर सर्किट क्या होता है, हम कुछ नहीं, सेम रेक्टिफायर की सर्किट है, सिर्फ हमने क्या किया है, इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट किया है पैरेलल में। हम जहाँ से आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं रेक्टिफायर के आउटपुट में, हम कैपेसिटर को पैरेलल से कनेक्ट करेंगे, तो ये वर्क करेगा एज ए फिल्टर। ये क्या करेगा, आपका जो भी आउटपुट है रेक्टिफायर का, उसमें से जितना भी एसी फैक्टर होगा उसको रिमूव करके आपको एक कांस्टेंट डीसी देगा। दिस इज द फिल्टर सर्किट। इसमें ही एक अनदर टाइप है जिसमें इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो भी एक तरह का फिल्टर ही है। तो हम इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। क्या होगा, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी सभी को पता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, वो उसका एक वर्किंग है। कैपेसिटर एक एसी कंपोनेंट है और वो हमेशा चार्ज होएगा, डिस्चार्ज होएगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, जब भी हम रेक्टिफायर का आउटपुट रहेगा, इसमें हम जब जाते हैं तब क्या होता है, कैपेसिटर जैसे ही वोल्टेज उसके अक्रॉस वोल्टेज पड़ता है, देखो सिंपल इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होएगा, यहाँ से जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है उस आउटपुट में आपका एसी भी है और डीसी भी है। आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है उसमें एसी भी है, डीसी भी। हमको उस एसी को रिमूव करना है। अब ये एसी क्या करेगा, एसी एक ये वाला पाथ है और एक ये पाथ है। अब कौन सा एसी फैक्टर क्या होगा, जो भी एसी है वो कैपेसिटर एसी कंपोनेंट है, और आपका जो रेजिस्टर है वो डीसी कंपोनेंट है, प्योर डीसी कंपोनेंट है। तो क्या होता है, इसमें से जो आउटपुट है वो जो एसी पोर्शन है वो इस कैपेसिटर में से रिमूव हो जाता है, और ये हमने ग्राउंडेड किया है, और जो भी डीसी कंपोनेंट है वो यहाँ से क्रॉस होकर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। एक ये सिंपल ले है, बट आपके बुक में इसको अलग तरीके से, इसको कैसे, अगर आप इसको डिटेल में देखते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर जैसे उसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता है तो ये कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज होना स्टार्ट करता है। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करता है, कहाँ तक चार्ज होगा कैपेसिटर चार्ज होगा अप टू मैक्सिमम पिक वैल्यू। आपकी जो साइनोसाइडल, आप जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उस तक वो क्या होगा, चार्ज होगा। उसके बाद वो होता है डिस्चार्ज। जब तक वो चार्ज होता है उसके बाद वो क्या करेगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा। जब आपको आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा तब क्या होगा, यहाँ से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब ये डिस्चार्ज होएगा, कब तक डिस्चार्ज होएगा, जब तक आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। देन अगेन आपका निगेटिव साइकिल में जाएगा, ये निगेटिव, तो उसमें उस वक्त भी क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। जो डिस्चार्जिंग टाइम है इसमें कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड आर। Capacitance which we are using and resistor, this resistance which are used for output, इनका प्रोडक्ट होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा करना है तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू क्या करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, उसका डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे वो चार्ज होगा और ये डिस्चार्ज होगा। कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, ये जब तक उसका वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता है। जब उसमें यहाँ से इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा फिर से वो क्या होगा, चार्जिंग स्टार्ट करेगा, फिर वो चार्ज होने लगेगा, फिर चार्ज होएगा, फिर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो फिर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, ये जो आपको पहले साइनोसाइडल मिल रही थी आपको एक यूनिडायरेक्शनल वेव मिली, अब आपको कांस्टेंट डीसी मिलेगी विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर फिल्टर। We are connecting parallel capacitor with the rectifier circuit and this remove AC portion and we will get DC output. This one is the filter circuit.
सो ये आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर विथ फिल्टर सर्किट, ये आपका टॉपिक। इसके बाद है आपके स्पेशल पर्पस डायोड, फोटो डायोड, LED एंड सोलर सेल। दीज आर द 3 टॉपिक्स रिमेनिंग इन दिस चैप्टर। इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं लास्ट ईयर, वो भी हम स्टडी करेंगे। सो योर नेक्स्ट वीडियो दिस इज in this video we see the rectifier circuit and next video is about the special purpose diode. थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।